Hello everybody. Thank you so much, राजेश सर. मैं सबको नमस्कार कहना चाहता हूँ. नमस्ते. नेपाल की तरफ से. हाँ. हमारे राजेश समाल महानायक राय समाल चाहिए. मैं उनको दादा बोलता हूँ. ताई मतलब दादा मीन्स बिग ब्रदर. तो अभी हमारे सर है इधर. हमारे सर सबको मैं नमस्कार कहना चाहता हूँ. हमारे चेहरा सॉन्ग का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था. नेपाल में शूट हुआ, जो इंडिया और नेपाल का जो इंडो कल्चर का जो हमारा फ्रेंडशिप था, उसको इसमें दिखाया गया हुआ है. तो बहुत अच्छा लगा काम कर यहाँ पर बॉम्बे में आके यहाँ पर रिलीज़ हुआ तो बहुत अच्छा लगा है. तो थैंक यू सो मच डायरेक्टर सर दशरथ सर और मेरे दोस्त लोग रोशनी, नीतिशा एंड राजीव भाई और आशीष सर. सबको थैंक यू कहना चाहता हूँ. तो थैंक यू आप सबको भी. थैंक यू सो मच. हरे कृष्णा, दिस इज रोशनी. पर एक चीज पूछूंगी पहले तो स्पीच देने से, आप लोग को अच्छा लगा सॉन्ग? बहुत अच्छा. आउट ऑफ 10 बी ऑनेस्ट. हाँ, बहुत ही अच्छा है. Thank you, thank you, thank you. Very nice song. I think I would start with saying that I feel blessed to be a part of it. The reason being, it's like Indo-Nepal friendship song, right? And I got the opportunity. Thank you so much, Rajesh sir. Thank you so much, Dashrath sir. And जब मैंने पहली बार ये song सुना, I fell in love with the voice. So thank you. Yeah, and it's a beautiful song, and it has been composed in such a just manner. So I think it did justice to the song and the purpose, the vision that Rajesh sir had. And being in Nepal, shooting for it, I did not feel like I'm away from home. The country is so warm. The people out there are so warm. They're so welcoming. And I loved it. It was a wonderful experience, and I got a very good friend, Neeti. Yeah, she's a darling, and it was a pleasure working with Rajiv ji and Prince as well. So yeah, I think it's good because you liked it, so I'm happy. Thank you. Hi everyone, I am Neeti Shah. I'm a model in Nepal, and I was also Miss Nepal International in 2017. I started at a very early age, and it's been almost a decade that I've been working in Nepal. It's been an absolute pleasure. I feel like a dream that I'm in Bombay working with all of you. Very grateful for this opportunity. Rajesh sir and the entire team, it felt like a family. Thank you for coming Nepal and giving us this huge platform to be here in Bombay, because this is a really great platform for all the Nepalese aspiring stars. So thank you so much. Very happy to be here. Thank you. Namaskar, I'm Rajiv Pillai. Namaskar, Professor Rajesh Ji, Chitan sir, Vigra sir, and all of you to come over here. And as Roshni said, I'm not repeating the words. Usually it was indeed a great experience. How would I say, people over there in Nepal were so warm, so welcoming, and so happy to see us. There were not even a single incident when we felt that we were out of India. That was the best part of the country. And Dashrath sir, he was over there. Thank you, sir. And the whole song was envisioned by this man over here, Rajesh Bhai. And he made it sure that it was made in such a way that people liked it. And thank you, Ashish, for such a great job. And thanks to my co-stars, of course. Yeah. Thank you. I'd like to thank everybody for coming here today. First of all, आप सब लोग मुझे मिल चुके हैं इससे पहले. We have hung out before this. I know आपने interviews लिए हैं, तो most of you all I already know. तो बस ये कहना है कि फिर से एक बार मुलाकात हुई. मैं चाहता हूँ मुलाकात होती रहे और बार ऐसे और गाने आते रहे. और first of all, I genuinely from the bottom of my heart like to thank Rajesh ji for all the support, for all the encouragement, for guiding me throughout this process, for sharing his vision with me and making me a part of his
his plans and giving me this opportunity to compose this song. मेरे लिए एक बहुत अच्छी और बड़ी opportunity थी ये. Luckily हुआ ऐसा कि मैं नेपाल जाके भी आ गया during the course of making this song. So मैंने देखा कि कितनी खूबसूरत कंट्री है नेपाल, बेहद खूबसूरत है और मैं चाहता हूँ कि मैं महीने में 3 बार जाऊँ नेपाल, कितनी खूबसूरत लगी मुझे. तो yeah, I mean I'm really glad and I'm genuinely very thankful and thank you so much sir. सर आपके हाथ में माइक है, गाना हो जाए. प्लीज सर. अच्छा यही वाला सुनो तो. हाँ सर. पहाड़ों ने ओढ़ रखी बर्फीली चादर है, हिमालय की चोटियों से बातें करता अंबर है, चमकती है लहर तेरी जैसे संगमरमर, दिलों का सुकून देती हवा तेरी छूकर है, आसमां को है यकीन जानती ज़मीन है, नहीं तेरे जैसा कोई दूसरा हसी. क्या बात गजब. So thank you so much. Moving. Okay, thank you everyone. Tapa sir, namaskar. Rajesh Malji, welcome to India. Sir, thank you. Vikas bhai and everybody else, Kushi, all my friends who've come. This song is a dream come true. 7 साल 8 साल से मैं बिजनेस कर रहा था नेपाल में. काफ़ी होटल प्रोजेक्ट्स में हमारे काफ़ी इंस्टॉलेशंस हैं और मैं एक जो मुझे जो एक्सपीरियंस हुआ नेपाल जाके और लोगों से मिलके, आई फेल इन लव विद दैट कंट्री. इट इज़ सच ए वंडरफुल कंट्री. इतनी ब्यूटीफुल जगह है, आई वुड से अनएक्सप्लोर्ड. लॉट ऑफ प्लेसेस इन नेपाल स्टिल अनएक्सप्लोर्ड. So पोखरा जाता हूँ and the warmth of the people really made me feel that, you know, let's do something with Nepal. Similar things I have plans in my, that's my second thing that I would do in the later part of 2022 is Sri Lanka. So these two countries are very close to my heart. So Nepal, why? Because you know, I feel that, you know, I could connect with people जिनके साथ भी business किया. It was really a wonderful experience. मैंने कई लोगों को गाइड किया, उनके बिजनेसेस को काफ़ी ऊपर लेके गए हम. एंड दे आर इनटू किचन इक्विपमेंट सेटअप्स. सो काफ़ी होटल्स में हमने इंस्टॉलेशंस किए. तो मैंने सोचा कि कुछ और करते हैं. सो व्हेन आई क्विट माय जॉब, आई डिड अ फर्स्ट फिल्म व्हिच इज विद मिस्टर संदीप मलानी. हैज डायरेक्टेड माय फिल्म. ही केम अप विद द आइडिया एंड देन वी मेड अ ब्यूटीफुल फिल्म. और उस फिल्म का आपको एक रिव्यू हम दिखाएंगे. और मैंने सबसे पहले जो प्रण लिया जब मैं इस इंडस्ट्री में कदम रखा, हालांकि मेरा आई एम एन एक्स एम्प्लॉय ऑफ जी टीवी. मैंने 95-96 में जी टीवी में काम किया. तब एसएल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज और लॉरेंस रोड में हमारा ऑफिस था. सुबह बैठ के जाता था एंड आई वाज इन द एड सेल्स डिपार्टमेंट और शाम तक कुछ ना कुछ लेके आता था. हमारे आलोक जो ओझा जी थे, ही वाज वेरी हैप्पी दैट, यू नो, दिस गाय इज परफॉर्मिंग. उधर से आई डिडंट लुक बैक. एंड देन थोड़ा सा बैकग्राउंड है ऑल्सो इनटू कोऑर्डिनेशन ऑफ फिल्म्स. मारवा स्टूडियोज के साथ नोएडा में उनका काफ़ी फिल्म्स का कोऑर्डिनेशन किया. डी रामा नायडू साहब के लिए किया है, गोली वेल के लिए किया है. काफ़ी लोगों को काफ़ी एक्सपीरियंस था. तो मुझे करना था कुछ इस ये लाइन में. मेरा एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी भी था दिल्ली में और मैंने कई बड़े बड़े NGOs के लिए इवेंट्स किए हैं. सो ऑल दिस अगेन, यू नो, आई वेंट इनटू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड. मैं कुछ 13-14 साल कॉर्पोरेट वर्ल्ड में था. आई वाज हेडिंग नीलकमल का साउथ इंडिया हेड था, फिर एक अमेरिकन कंपनी उसका हेड था. आई क्विट माय जॉब ऑन 17 September एंड आई लॉन्च्ड माय you know banner. And the name of the banner is Ashmita and Amisha Films, named after my daughters. और मैंने एक चीज़ ठाना कि मैं कोई भी कंटेंट बनाऊंगा, आई शुड बी एबल टू वॉच विद माई डॉटर्स गिल्ट फ्री. सो ये मेरा प्रण है और आप लोगों के सामने भी मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि सिर्फ वायलेंस या सेक्स दिखता नहीं है. यू कैन always try and do something good, some message should be there. So Indo Nepal project मेरा जो है एक ड्रीम कम ट्रू है. लाइक आई सेड कि नेपाल में कुछ करना है तो नेपाल के लिए कुछ करो. तो मैंने इंटरनेट में सर्च किया क्या है कंटेंट जो नेपाल को प्रमोट करता है ग्लोबली. सो गाने थे बट नेपाली में थे. तो मैंने बोला कि एक हिंदी गाना बनाते जो हम इंडिया में उसको प्रमोट करेंगे. देन आई सिलेक्टेड 2 people फ्रॉम इंडिया एंड राजीव भाई एंड रोशनी फ्रॉम इंडिया एंड प्रिंस एंड Niti from Nepal, and director is from Nepal, producer is from this thing, singer is from India, and the
and the composition is from India, and the post-production and everything, lyricist is also from India, Arafat Mahmood sahab, आने वाले थोड़ी देर में. So he has done ध्वनि का जो गाना है, कौन सा गाना है, बहुत famous, वास्ते गाना, वो बहुत. नमस्कार. नमस्कार. हृदय से नमस्कार सबको. बहुत खुशी हुई. I'm very happy to be here in Mumbai. You know, Mumbai of course hasn't been a new place for me. I've been here many times over the years. The first time I came here was maybe around 35 years ago. And I've been working in Nepali films for the last 30 plus years. It's almost 32 years. But my age is only 25. So you do your maths. Go home and do your maths. You know. So it's a wonderful time here. I must thank Rajesh Chaudhary for bringing me over this time because I was being hungry for Mumbai. You know, I haven't been in Mumbai for the last 3.5 years, and I have such a fond memories, especially in the 90s and early 2000s. When I had come here to shoot Nepali films, I've probably come here to shoot maybe 5 or 6 Nepali films during those last 25 years in Film City and SL Studio. Does that still exist? Is it still called SL Studio? Or is it called something else? Is it still SL Studio? Yeah, okay. So I've done, I've shot a few films over there and a few films at the Film City, and have very fond memories. Have quite a few friends and that I know who are close to my heart. And Master Thapa happens to be one of the person. Master Thapa, you must come here. Every time I come to Mumbai, my visit is incomplete without meeting this gentleman over here. Why don't you stand up and up khade hoiye. He's a very charismatic guy, and he's been a very strong force and a prominent member of Shiv Sena. With him, I had gone to Bal Thakur's house and met when he was still alive about 10, 12 years ago. And Smita Thakur, we met them together, and Uday Thakur. We have yet to meet Raj Thakur. Yeah, I have yet to meet him, but I've met the rest of the other family. So thank you very much. And I'm so impressed with what Rajesh has in the pipeline for Nepal and for India and the relationship between the two countries. And I'm totally amazed by the kind of ambition that he has, especially in the creative field, that he wants to do to promote especially the relationship between Nepal and India. Because you see, art is a soft diplomacy, and I always believed that through art and through culture, the ties between the two countries can be much more stronger than political ties. You know, sometimes politics can go haywire. Sometimes political happenings can be misunderstood. But as long as there is a great cultural tie, as long as there is a great people-to-people relationship, then the relationship between the two countries is extremely stable, and it never wobbles. So Rajesh is doing an extraordinary thing through art to bringing two countries together, Nepal and India. And sometimes I feel that he has a very ambitious project, but I do want to, give my support and help wherever I can, because I want his dreams to come true. He wants me to do a Hindi song, which is again something new for me, because in the last 32 years that I've been working in Nepali films, there's only one project that I have done outside of my country, and that happens to be, I don't know if I should be telling this here, but that happens to be a Pakistani film. So I've done one Pakistani film way back around 10 years ago, but I've never featured in any of the Hindi songs. However, I must tell you that I started off my modeling career from India. Way back in my 20s, I had come to Mumbai and have done ramp walking, and I've done fashion modeling, when I was in my early 20s. I've done a lot of photo shoots at Juhu Beach and Palm Grooves and Sun and Sand Hotel, which was very prominent, iconic features those days. And have done a few modeling assignment in New Delhi as well at Maurya hotels and etc. But after that, then I went to Nepal, and I've been working in Nepali film. And fortunately, I've been in Nepali film for the last 32 years, churning out. And then I studied in Chandigarh, Balle Balle. Don't forget the water of Chandigarh.
No. Water, the rajma, and the chawal, and the lassi, and whatnot. So they were all excellent. So thank you very much for being here, especially the members of the press. I'm sure that you will disseminate this news, and people of Mumbai and people of India will know that how close both the countries can be, because sometimes politics betrays us, but the cultural ties and the people-to-people tie will never betray us as long as we have a good intention in the heart, right? So Rajesh Chaudhary ji, I always say that he's an Indian person with a Nepali heart, because he has so much of love for our country, and it's only recently that I've met him, but it feels like that I've known you for ages. No, it hasn't. It's like 5-6 months that I met you first time. I met him about 6 months ago, and now I feel that I've met him for all my life. More than 30, all my life, 25 years. And again, meeting the whole cast, like Rajiv is such a gentleman over here, and he's got a fantastic look. So I hope that he will also be part of Nepali films in the future. I'm saying that if I come with an offer, please don't say no. And then Niti, of course, she is from Nepal. We met several times, right? And she's been doing great works. And there's something over here in a tiny package that is ready to explode. Vibrant things always come in tiny packages, so she happens to be one of them. And Prince, of course, I've known him for so many years now, and he's been an excellent guy, and he's very passionate about acting, and wants to do something in the field of cinema. I wish him all the best. And Dasrat, how can I miss you? Dasrat is, like he said, he runs VFY talk shows. You can go to YouTube and type VFY, and you'll come and see his several interviews that he has broadcasted. And I've been in 2 or 3 of those interviews that he has done, and we had a great association doing that. And on a personal level also, we are very good friends. He comes to my house, and we talk and discuss about creative works and about life. And not only about life, but we also talk about mind, body, and spirit, don't we? Huh? And we talk about world history, we talk about a lot of things, and he's a great listener. He's a great listener. And Rajesh ji was always complaining that Dasrat doesn't smile, but whenever I speak to him, he's always smiling. So Rajesh ji, you got to see that, you see. Every time I speak to him, you can see all his teeth, and he's smiling from ear to ear. And he's an excellent guy. He probably doesn't say so much, but he really puts in his effort in whatever he is doing. He's very passionate, he's very hardworking, he's very focused in what he is doing. So it's a great team here. And Ashish ji, how can I forget him? I admire singers a lot, and I envy them as well, because I think singing is such a gift. You got to be born with that talent. There's no way that you can practice, or no matter how hard you work, if you don't have the basis of that talent, you can never be a great singer. So it's a God gift to have a great voice and to be a great singer, because I did dabble in singing in my career, and I know how hard it was. It's really hard. I had to take a lot of technical helps, in order to come out all right. So, Ashish, thank you so much for singing this. No, that's not singing this wonderful song and picturizing this in Nepal and bringing the two cultures together. Thank you for your presence. You want a short one or a little long one? Long one. Oh, there's I've done like over 280, 290, close to 300 films in the last 32 years. There was a time when I was churning out maybe 12 to 14 films in an average every year. And that went on for about a good 12 years. I was putting in 16 to 18 hours every day, working in Nepali film, day and night. So in the last 32 years, I've done close to 300 films. And most of my films have been where I have portrayed a role of average underdog, and
representing the normal Nepalis, and that's one of the reasons why a lot of my fellow Nepalis, my brothers and sisters in India, have put me, given a place in their heart because they truly feel that I'm one of them. It's not even actor and fan relationship that I have with my people in Nepal. It's more like a family member in Nepal, and I really appreciate that. And I'm never tired of praising and appreciating the love and affection that I get from the people of Nepal. They've been a backbone, and in my career, they've been a motivating force. So most of the characters that I've done was for young adults, for the normal people, and it has forceful dialogues. So I'm going to say a few of the dialogues. I did a film called Sankar, in most of my films I'm either called Sankar or Arjun. So some of my fans, they even call me Sankar instead of calling me Rajasthan, right, when they see me. Satru Samarak Dushta Vinasak Pralayankar Huma Tero Lagi Sakchat Mrityu Sankar Huma. Sajjan ko lagi naik. सज्जन को लागी नायक, दुर्जन को लागी खलनायक, दुश्मन को नाम राम नाम सत्य छ, अन्यायमा न्याय दिन राजसदाय आउँदैछ. Now I have a short one. साथीहरुको लागि यो हात सलाम, दुश्मनको लागि यो हात फलाम. Thank you. Thank you so much, sir. It's always wonderful to. शादी में गाना बजेगा. ओम शांति शांति शांति. विश्व में आज जो कोरोना का महामारी फैल रहा है, उसके लिए जितने लोग भी विश्व में कितने कोरोना काल में मर गए होंगे, एक सेकंड के लिए हम उनके लिए आत्मा के लिए शोक शांति रखते हैं विश्व में. थोड़ा खड़ा हो. राकेश तुम तो बैठा रहे. अरे बैठना यार. राकेश यार. तो सबसे पहले महाराष्ट्र के धरती में, मेरी थोड़ी हिंदी टूटी हुई तो माफ करना, मिक्स होते हैं नेपाली मराठी सब मिक्स होते हैं. 45 साल से महाराष्ट्र में, नेपाल में जन्मा हूँ. महाराष्ट्र की इस वीर धरती, छत्रपति शिवाजी महाराज की यह धरती में जो भी प्रवास से नेपाली यहाँ आया या हिंदुस्तान से कहीं से भी आया, इस धरती में जिसने पसीना गिराया उसको कभी भूखा सोना नहीं पड़ा, कभी नंगा जाना नहीं पड़ा, कभी बेघर जाना नहीं पड़ा, उसको पैदल चलना नहीं पड़ा. 2 रुपया लेके आओ या 2000 लेके, करोड़ों रुपया कमा के यहाँ से रिटर्न जाते हैं. हमने जीता जी आज में 19 साल के बाद मिले जीता जी. मैं भी थोड़ा सावलेन कुंफू से हूँ, वो तो मार्शल आर्ट से. मैं भी थोड़ा सा 86 में हमने भी थोड़ा गोल्ड मेडल लिया था. ये धरती ऐसी है महाराष्ट्र की, आप धरती माँ को प्रेम करोगे यहाँ तो आप फिसलोगे नहीं. हम नेपाली लोग के लिए यहाँ के हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी स्वर्गीय, हम स्वर्गीय नहीं बोलते, उनकी वजह से आपकी यहाँ खड़ा होने की औकात हमें मिली है. हमारे छोटे भाई उनके 24 घंटा सेवा करते थे, चंपा सिंह थापा, और एक नगर सेवक थे हमारे नेपाल के, तो मसल पावर भी थे. शिवसेना के पहले नगर सेवक के थापा थे, किम बालू थापा थे, आप कोई पत्रकार लोग जानते होंगे. उनकी वजह से नेपाली लोग महाराष्ट्र में बहुत आना शुरू हुआ. बहुत से क्षेत्रों में उनको श्रमजीवी कामगार बोलते हैं, उसको काम मिलना चालू हुआ. तकलीफ नहीं हो इसके लिए बहुत से संगठन बनी. उसी तरह से नेपाली कामगार सेना बोल के एक संगठन बनाया गया शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी के हाथों से. नेपाली कामगार सेना का मैं संचालक हूँ, अध्यक्ष. उन्होंने संजय राउत जी को दिया सलाहकार कि एक MP चाहिए भारत वर्ष में. हमारे कम से कम 1.5 करोड़ नेपाली यहाँ काम करते श्रमजीवी है. 10% तो उद्योगपति होंगे, उद्योगपति भी है, डॉक्टर भी है, साइंस से भी है. अभी तो यहाँ बहुत बड़े लोग हमारे पहले पीढ़ी थे, हम खाली कुकरी लेके आते थे. अभी यहाँ बड़े बड़े बिजनेसमैन है, होटल है, डायरेक्टर्स है, अच्छे फील्ड में भी है.
तो हमारे नेपाली लोग की एक खासियत है कि हम जहाँ भी जाए शक्कर के जैसा मिल जाते हैं। अगर गलत किया तो गर्दन भी काट डालते हैं, उसका खून भी पी जाते। ये हकीकत है, ये शिवसेना की वाणी नहीं है, गुरखा की वाणी। गुरखा को प्यार करो तो जान दे दे। क्या राजे थे आज विश्व में, आज भी हिटलर ने उस टाइम बोला था मेरे पास गुरखा होता तो विश्व जीत लेता था, मैंने 4 आना हार गया कि गुरखा मेरे पास नहीं थी। कि वो है आज भी जिसके घर में गुरखा काम करते हैं। अब इतिहास देखो, मोदी जी के घर में भी जब मोदी जी कुछ नहीं थे, मैं व्यक्तिगत बाला साहब ठाकरे जी की कृपा से उनको मिलने का चांस मिला सीएम बनने से पहले, सॉरी पीएम बनने से पहले। उनको संभालने वाला भी नेपाली हमारा भाई। अभी भी नेपाली लोग हमारे बहुत से दिल्ली में, घर में, किचन में, ड्राइवर में, सारथी। श्रम कोई छोटा काम नहीं होता, तो श्रम नहीं करना चाहिए। श्रम को श्रम नहीं करना चाहिए। हम श्रम देते हैं, खून नहीं बेचते। आप भी कोई देश में भारत से बाहर जा रहे हो, श्रम बेचो, खून नहीं बेच रहे हो, डरने की जरूरत नहीं। आपका कला बेच रहे हो, आपको शरीर नहीं बेच रहे हो। आपको कोई सोचता है तो वो बुजदिल है, वो नामर्द है सारा। तो नेपाली लोग आज यहाँ बोलना चाहता हूँ कि यहाँ राजेश जी ने मेरा निमंत्रण दिया। अचानक मुझे मेरा मित्र मालूम पड़ा, इनका भी नाम राजेश है। फोन आया, मैं कल दिल्ली जाने वाला था, सत्यपाल सिंह हमारे कुछ काम था, कामगार के लिए। तो राजेश हमाल जी का मेरा इतना पुराना रिलेशन है, कम से कम 25 साल का रिलेशन है। बहादुर पिक्चर का पहला शूटिंग में मुंबई आए थे वो, तभी से मित्र के थ्रू पहचान हुआ। जिस तरह उनको हंसती थी, जो खानदान से, ऐसा किसी ने बताया नहीं, वो रॉयल फैमिली के खानदान से नेपाल में। उनका पिताजी राजदूत थे अमेरिका के, वो शौक से हीरो बने और एक पैसे का घमंड नहीं। हम शिवसेना वाले थोड़ा घमंडी रहते, मैं उनको मिलने चले गए। अभी हमारे बाला साहब के दरबार में तो सब आते थे, शाहरुख खान से लेकर दिल्ली, सब दुनिया दरबार में आती थी, हम उनको छोड़ते थे। गुड इवनिंग एवरीवन। आई एम सो हैप्पी कि मैं यहाँ हूँ और मैं बहुत सही टाइम पे पहुँची। मैंने पूरा साउंड देखा, बहुत ब्यूटीफुल शूट है, बहुत ही प्यारा लोकेशन है और एक्टर तो नो डाउट सभी बहुत अच्छे हैं। और हाँ यस मैं चाहूँगी प्लीज आपको देखना हो जाओ स्टेज पे। पहले राजीव, हाँ सब पूरी टीम आएगी ना, फिर हम लोग अनाउंस करेंगे ना, पूछेंगे ना। हो गया सर, आइए। हो गया। चलो वाइट करो ना। हाँ पहले फर्स्ट आप आ जाइए, उसके बाद सबको इनवाइट करेंगे। और नो डाउट सभी लोग बहुत बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं और मैंने जहाँ तक एल्बम देखा सभी का एक्ट प्यारा था। और नेपाली इंडस्ट्री के बारे में मैंने बहुत सुना है और वहाँ के कुछ एक्टर भी हैं जो भोजपुरी में काम करते हैं। तो नो डाउट वहाँ पे शूटिंग बहुत अच्छे से होती है, गाने बहुत अच्छे शूट होते हैं, एक्शन बहुत अच्छे होते हैं और टाइम वहाँ पे अच्छे से प्रॉपर शूटिंग होती है। एक सॉन्ग की आई थिंक 3 दिन तक भी चलती है, 4 दिन तक भी चलती है शूट। एक्शन पूरा एक तैयारी के साथ होता है, जो हमारे यहाँ पे थोड़ा कम टाइम मिलता है, सब कुछ थोड़ा फास्ट करना होता है। तो मैं चाहूँगी स्टेज के ऊपर एक बार मेरे साथ में पूरी टीम आ जाए। मैं चाहूँगी राजीव आप नाम अनाउंस करें प्लीज। ओके, नीति, रोशनी। ये गाना जो है एक इंडो नेपाल प्रोजेक्ट को एक शुरुआत देता है और हम इंडो नेपाल कल्चर को एक शेप देना चाहते हैं और इंडो नेपाल कल्चर को हम दिखाना चाहते हैं कि इंडिया और नेपाल अलग नहीं है, एक देश है और एक जैसे लोग हैं हम। एक हमारा बोली है, सब लोग हिंदी समझते हैं नेपाल में और हम इससे दिखाना चाहते हैं कि हमारा जो टैलेंट है इंडिया में और नेपाल में हम इसको साथ में लाना चाहते हैं। इसीलिए हमने आधा नेपाल से लिया है एक्टर्स और आधा इंडिया से लिया है और हमारा सिंगर इंडिया से है और डायरेक्टर वहाँ से और प्रोडक्शन हमने उधर किया, शूट किया है और यहाँ पे हमने गाने को कंपोज किया है
और अराफात भाई ने गाना लिखा है। सो इट हैज़ कम आउट वेरी ब्यूटीफुल। ये एक साथ में हम लोगों ने मिल के किया है, इंडिया और नेपाल टीम मिल के, तो ये बहुत अच्छा एक प्रोडक्ट आया है सामने और हम इससे इंडिया और नेपाल के रिलेशनशिप को और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं। तो अराफात भाई नहीं, राजेश भाई ने जब मुझसे कहा कि मतलब एक गाना करना है, तो मैंने वही जो मैंने अपनी शुरुआती स्पीच में कही थी कि मैंने वो पूछा कि किस लिए करना है। तो गाने तो बहुत लिखते हैं, आपने देखा होगा कि मेरा एक गाना है जो 1.4 बिलियन भी है यूट्यूब पे, वास्ते नाम से। कई सुपर हिट गाने मैंने दे दिए, लेकिन जब किसी मकसद के तहत आपको आवाज़ दी जाती है तो वहाँ पे कलमकार का, वहाँ पे फ़नकार का, वो जो फ़नकार की ज़िम्मेदारी है वो बहुत बढ़ जाती है। और जब राजेश भाई ने कहा कि दो खूबसूरत कंट्री के तमाम खूबसूरत लोगों को जोड़ना है, तो उसके लिए एक बेहद खूबसूरत गाने की ज़रूरत पड़ती है। तो हम सोच सकते हैं, लेकिन नेपाल की अच्छी बात यह है कि नेपाल ने अपने अपने सीने में इतने खूबसूरत मनाजिर छुपा रखे हैं कि आपको बहुत आसान हो जाता है बात कहनी। तो मैंने वही जो आजकल गूगल सर्च किया, नेपाल को देखा, लिखते वक्त बहुत खुशी हुई मुझे कि बहुत कुछ है बयान करने के लिए, लेकिन वही है कि गाने की लिमिटेशन होती है कि आपको 3-3.5 मिनट में अपनी बात कहनी है। तो आई ट्राइड माई बेस्ट कि किस तरह से आप लोगों को पहुंचा जाए। एक बेहतरीन कोशिश की है मैंने, और जिस तरह से लोग मुझे मेरे कान में आगे सरगोशी कर रहे हैं कि बहुत अच्छा लिखा, बहुत अच्छा लिखा है, तो लग रहा है मैं कामयाब हो गया। तो आई होप कि हमारी ये कोशिश थी जोड़ने की, इस कोशिश को आप एलाबोरेट करेंगे, पूरी दुनिया तक पहुंचाएंगे। सिर्फ नेपाल ही क्यों, इंशाल्लाह जब हिंदुस्तान और नेपाल एक हो जाएगा तो हम इस मिशन को बहुत आगे बढ़ा देंगे। अभी बहुत सारे प्लान्स हैं, शायद क्रिकेट वगैरह का भी। तो राजेश भाई ने एक तमाम चेहरों को, क्योंकि गाने का नाम चेहरा है, और इस चेहरे का एक ही मकसद है कि हम आप सब के चेहरे पर खुशी की लकीरें बिखेर दें। बस एक बार नटशेल में यही कहना चाहता हूँ कि आप सब हमारे साथ आएँ तो हम कामयाब हो पाएंगे। थैंक यू सो मच। आशीष, आप क्या कहना चाहेंगे इस गाने के बारे में? आपकी आवाज़ है और बहुत ही बेहतरीन लग रही है बीच में, और क्या कैसे? नहीं अरे यार बताना जरा, हमसे काम करना कभी तो सीखा सर जी। ये गाने के बारे में एक्सपीरियंस कैसा रहा है? नेपाल में शूट हुआ है, क्या आप विजिट किए थे तभी या फिर? जी, तो इंडियन आइडल के बाद बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला जो एक विज़न कैरी करते हैं, जो जिनके कुछ गोल्स है, और राजेश सर वाज वन ऑफ देम। एंड उनकी एक मुझे यूनिक बात ये लगी कि उनका जो पैशन है और जो ड्राइव है, वो मतलब इस उम्र में भी मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एनर्जी है, हम अगर कभी मैच कर पाए तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। और उन्होंने मुझे इतना फ्रीडम दिया, इतना कॉन्फिडेंस दिया कि मैं ये कर सकता हूँ। और इतने बड़े मंच पे आज ये गाना लॉन्च हुआ है, और इतने बड़े लिरिसिस्ट का मुझे साथ मिला, अराफात महमूद साहब, कि मैं बहुत खुश नसीब समझता हूँ खुद को, और आई एम इनक्रेडिबली ग्रेटफुल एंड थैंकफुल। ये कंपोज करने की जर्नी भी बहुत खूबसूरत रही। इस दौरान मुझे, जैसे मैंने कहा कि एक शो के वजह से मेरा जाना हुआ नेपाल, और उस दौरान मैंने देखा कि कितनी खूबसूरत कंट्री है नेपाल, और उससे ही इंस्पिरेशन लेके मैंने थोड़ा कंपोज करने की कोशिश की। और एक हम्बल एफर्ट है, आप ज़रूर इसको सुनिए, और जो आपको लगे वो ज़रूर मुझे ऑनेस्टली बताइए, क्योंकि म्यूज़िक कंपोज कर पाना ये मेरे लिए एक लाइफ का सपना है जो मैं पूरा करना चाहता हूँ। और राजेश सर जैसे बड़े बड़े लोगों का अगर साथ हो तो 100% वो पूरा होगा। आशीष जी, इंडियन आइडल के दौरान बहुत सारे लेजेंड्स को मिले, अराफात जी के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा और क्या सीखा? अराफात सर के साथ मैंने पहला गाना किया, हाँ, ये पहला गाना किया था मंजूर दिल नाम का। उससे पहले जो मंजिलों का जुनून, अरे बाप रे, मंजिलों का जुनून, करेक्ट। तो मारुति सुजुकी का प्रमोशनल सॉन्ग जो था वो भी अराफात भाई ने लिखा था। उसके बाद बाहर आने के बाद पवनदा और मेरा जो फर्स्ट कंपोजिशन है साथ में, मंजूर दिल नाम का, 18 मिलियन हो जी, अभी 18 मिलियन पे चल रहा है, अभी मुझे पता चला। बहुत सभी लोगों का बहुत अच्छा प्यार मिला, और इतने एस्टेब्लिश्ड और इतने सेलिब्रेटेड लिरिसिस्ट हैं अराफात भाई की, उनके अंडर हम भी, छत्र छाया के नीचे आपके हम भी थोड़ा बहुत सीख रहे हैं, क्योंकि बड़े बड़े लोगों के साथ काम करते हैं खुद, और उनके पास जो एक थॉट प्रोसेस है वो इतनी यूनिक और इतनी खूबसूरत है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे अगले 50 गाने अगर मैं कंपोज कर रहा हूँ तो वो सारे के सारे अराफात भाई लिखे। तो इनके टैलेंट से मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ, ऐसे मैं कहूँगा।
तो अगर 2 लाइनें हो जाए आपकी आवाज़ में। अच्छा चलो पहले दूसरा समझ लेता हूँ। हो कभी कभी अदिति जिंदगी में यूं ही कोई अपना लगता है, कभी कभी अदिति वो बिछड़ जाए तो एक सपना लगता है, ऐसे में कोई कैसे मुस्कुराए, कैसे हंस दे खुश होके, और कैसे कोई सोच दे that everything's gonna be okay। कभी कभी तो लगे जिंदगी में रही ना खुशी और ना मजा, कभी कभी तो लगे हर दिन मुश्किल और हर पल एक सजा, ऐसे में कोई कैसे अपने आंसुओं को बहने से रोके, और कैसे कोई सोच दे that everything's gonna be okay। तो ये गाना, हाँ जी, ये गाना मैं ज़रूर सुनाऊंगा, बट मैं चाहता हूँ कि बिफोर मैं गाऊँ उसके बाद कोई और आए और कोई और बोले। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि इस गाने को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दे, इसको बहुत शेयर करें, हर जगह पे इसको फैला दीजिए, और प्लीज़ आपके जो ऑनेस्ट रिव्यूज़ है वो हम तक पहुँचाएँ, क्योंकि आगे बहुत सारा काम करना है और आप सबके सपोर्ट और प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसके 2 लाइनें बस जो कोरस है वो सुन देता हूँ मैं कि जिसने देखा एक नज़र उसको भी यकीन है, नहीं तेरे जैसा कोई दूसरा हंसी है, आसमां को है खबर और जानती ज़मीं है, नहीं तेरे जैसा कोई दूसरा हंसी है। थैंक यू। अबाउट दिस सॉन्ग एंड कितना एंजॉय किया आपने इस गाने को, क्योंकि इंडो नेपाल की जो फ्रेंडशिप के ऊपर ये गाना है और शूट भी वहाँ पे हुआ है, बहुत ही अच्छी लोकेशंस है। सर आप क्या कहना? आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि ये हिंदी सॉन्ग है और हिंदी इंडियन टीम ने बनाया हुआ है, मगर प्रशंसा नेपाल का करता है ये गीत, और नेपाल की रहन सहन दिखाया है। तो मेरे ख्याल में ये कल्चरल टाई में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करती है। तो बहुत खुशी हुई कि इंडियन सॉन्ग, इंडियन टीम और नेपाली टीम मिलके दोनों देशों को चाइनीज कल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं, दोनों को नज़दीक ला रहे हैं। मुझे तो बहुत खुशी हुई। आफ्टर लॉन्ग टाइम यू आर कमिंग टू मुंबई, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस एंड क्या कहना चाहेंगे मुंबई के माहौल के बारे में, इंडिया के? मुंबई में तो एक अलग ही एनर्जी है, नहीं ये तो वाइब्रेंट सिटी है, यहाँ एनर्जी है, यहाँ अच्छा है, यहाँ सब बैकग्राउंड, सब स्ट्रेटा, सब किस्म के लोग रहते हैं, अलग अलग रहन सहन देखने का मौका मिलता है, लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, मगर फिर भी सब लोग जितने भी मुंबई में रहते हैं सबको ये लगता है कि मुंबई हमारा है और ये हम ही यहाँ के हैं। तो एक अच्छा एनर्जी मिलता है यहाँ के। यहाँ का खान पीन बहुत अच्छा लगता है मुझे, यहाँ के स्ट्रीट फूड्स बहुत अच्छा लगता है। राजेश जी ने हमारा देखभाल बहुत अच्छे ढंग से किया है। वहाँ ने अपने क्या मुंबई का जो खास खाने का चीज़ होता है वो सब हमें खिलाया है। So any plans to do a Bollywood film or any क्यों नहीं, मैं तो कलाकार हूँ, मैं हर तरीके की फिल्में करना चाहता हूँ। अब राजेश जी और हम कुछ प्रोजेक्ट का प्लानिंग भी कर रहे हैं। एक गीत तो हम कर ही रहे हैं, एक गाना, और प्रोजेक्ट भी हम करेंगे, क्योंकि हमारा तो लाइन ही यही है, फिल्में बनाना मेरा पेशा है और राजेश इसमें शामिल हैं। तो हम दोनों कुछ इंडो नेपाल प्रोजेक्ट हो सकता है, मुझे लगता है। Thank you. How was your experience working on this song, and tell us about this experience in India? I grew up watching Bollywood movies in Nepal, so I'm quite. It's similar, but the whole project was so beautifully done. I made good friends like Roshmi and Rajiv, and the whole crew member. I actually came to Mumbai a month back for my own personal work, and then I happened to meet Rajesh. So it was unplanned. We met, and he asked me if I would be interested to do this music video, which it revolves around the relationship between the two countries, Nepal and India. And I instantly said, okay, why not? It's a great project. And they came over to Nepal, and we had such a great time shooting. It was like
we were like a family shooting together, and I had such an exceptional, great time, and I would love to work with the team again in future. Yeah. Who is your favorite actor in Bollywood? Ranveer Singh. I really like his style, and I am head over heels for him. He is an amazing actor. रोशनी, how was your experience? कैसा था experience नीति के साथ and पूरी cast and crew के साथ? आप लोग नेपाल भी गए थे? हाँ जी, हाँ जी, इस हाँ बारे जी। में कुछ पता है हमारी audience? सो पहले तो मैं थैंक यू बोलूँगी राजेश सर फॉर गिविंग दी अपॉर्चुनिटी। मैं जितना बार भी थैंक यू बोलूँ मुझे लगता है बहुत कम है, क्योंकि आई हैव मेड वेरी ब्यूटिफुल फ्रेंड्स देयर एंड द प्लेस इज़ अमेजिंग। और मुझे सच में फ़र्स्ट टाइम ऐसा पता चला है कि इंडिया के बाहर कोई ऐसा कंट्री है जो बिल्कुल इंडिया जैसे ही है। वहाँ का कल्चर, द वे दे स्पीक, द वे दे वेलकम, लाइक हम लोग बोलते हैं अतिथि देवो भव, सो दे ऑल्सो फॉलो दैट, यू नो। And yeah, it was an amazing experience. And firstly, when I heard the song, I loved the song so much. I was like, I'm glad that I got this opportunity and I'm going to grab it right now. I'm not going to let it go. So yeah, it was amazing. And the entire team, as Niti said, there's nothing different that I would like to add, but we are a family, and I hope Hare Krishna will do so many more projects together. Yeah. And thank you, Niti. She has been the most wonderful girl ever I've met ever. She's so kind, she's so generous, she's so sweet, and she's very talented. She actually took great care of the team. Along with the team, she was the one who put a lot of effort to make us feel very comfortable and like home there in Nepal. So thank you for that. Thank you. Plans to collaborate with Rajesh sir and Niti again? Why not? Why Doing a not? part 2 of this song in Of course. India. Yeah. So now the Nepali team is coming to India, and India. that's going to be another part 2 of the song. Yeah. So. Now this time we are going to show an India, Bharat Mata Ki Jai, in a very different way with a beautiful song again. Yeah, inshallah. Hare Krishna. Yeah. Thank you so much and all the best. Thank you. Thank you. किससे पूछ रहा है? Okay, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले कैसा एक्सपीरियंस रहा? एक्टर्स से जानना चाहूँगा दोनों से। बताइए कि नेपाल में आप लोगों ने शूट किया है और जो है राजेश सर से मिले आज और नेपाल के सुपरस्टार हैं। Were you nervous before doing this song और क्या कहना चाहेंगे आप? फर्स्ट ऑफ ऑल राजेश सर एक्टिंग तो नहीं कर रहे हैं ना तो नर्वस वी वर नॉट नर्वस इनफैक्ट वी ऑलवेज न्यू फ्रॉम राजेश भाई दैट Rajesh Amal sir is a very down to earth person. Of course we know his the lineage he has and the kind of fan following he has in Nepal. So but then as a person we have understood what kind of a guy he is. So we were never nervous, and about the shooting we were there for only 3 days. That is the saddest part. We wanted to be there for a week at least. Yeah. So we had to finish it in such a short span of time. Where we were shooting day night, so we couldn't actually explore the whole of Nepal. That is one thing which still haunting us, in fact. So, but then we are planning to go there and shoot there again. So we are gonna do that next time. And about the love which we were showered when we were. For example, if you're going for a jog on the street also, and the love they are giving us is unparalleled. It's so good, You feel like you are walking on the streets of India. So that is the kind of warmth which we are getting from there. So it was always good, and thanks to the director and the co-actors, we were always there in the comfort zone. We could give our best, and thank you Rajesh bhai. Thanks Alona. एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हुआ है। जो नेपाल और इंडिया का जो दोस्ती रहता है तो इसमें दिखाया गया है। तो इसमें नेपाल का ब्यूटीनेस सब कुछ दिखाया हुआ है। तो अभी नेक्स्ट टाइम दूसरे सॉन्ग में आने वाला है, अभी इंडिया का ब्यूटीनेस क्या है वो सब दिखाएंगे उसमें। तो अभी बॉलीवुड में जो सॉन्ग मूवीज़ रहते हैं वो सबको हम देखते रहते हैं। अभी नेपाल का भी इधर मूवी आएगा, उधर का भी होगा तो बहुत अच्छा रहेगा। ये कहना चाहता हूँ। हमारे डायरेक्टर सर दशरथ सुनार सर है, वो मेरे गार्जियन भी है। सब राजीव भाई और हमारे को एक्ट्रेस सबको थैंक्स कहना चाहता हूँ, और आप सबको भी थैंक यू कहना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। कैप्टन ऑफ द शिप से जानना चाहूँगा सर,
डिफिकल्ट था पूरे प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करना आपके लिए? Yeah, as a professional, it's not difficult. This is my job, right? So I have to handle all the project because I always believe in action. This is my profession. That's why it was very easy for me. How was your experience shooting with the actors? Oh my God, it's amazing. Yeah, it was, as a captain of the sea, I was more, have to more focus on the camera set, frame and all the angles. While working with my cast and crew is amazing. Amazing. Even I can't express my words in front of the camera, but it was quite amazing. So गेस्ट भी यहाँ पर है, शुभी मैम क्या कहना चाहेंगे? आपने गाना देखा, गाने के बारे में क्या कहना चाहेंगे अगर कुछ बताया आप? बहुत प्यारा है, वॉइस बहुत प्यारी है, शूट बहुत ही अच्छे से शूट किया गया है, प्रॉपर आर्टिस्ट, लोकेशन, एवरीथिंग इंक्लूड करके दिखाया है। वरना कई बार क्या होता है, सॉन्ग शूट होता है बट या तो सिर्फ आर्टिस्ट ही दिखते हैं या फिर लोकेशन ही दिखती है। इस गाने में ओवरऑल सब कुछ परफेक्ट था, वॉइस से लेके, लोकेशन से लेके, एक्टर से लेके, डायरेक्शन से लेके, एवरीथिंग इज़ सुपर्ब। और मैं इस सॉन्ग के लिए यही कहना चाहूँगी, जो मेरा प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया है, मैं जहाँ जहाँ पे हूँ मैं इस सॉन्ग को प्रमोट करूँगी क्योंकि मुझे गाना पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आया है डेफिनेटली। और मैं चाहूँगी जो हमारी ऑडियंस है वो भी इस सॉन्ग को देखे और अपना ढेर सारा प्यार दे। और तो मैं पूरी टीम को बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूँगी और ऐसे गाने आप बैक टू बैक बनाइए। थैंक यू सो मच।